So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 9th, right? So today we are going to go through English literature, Beehive, and we are going to start a new story, that is lesson 4, A Truly Beautiful Mind, right? So class, if you remember in our last video, we have gone through lesson 3 in Beehive only, where we have completed the chapter lesson 3, The Little Girl, right? We have already completed that chapter, and I told you to go through the story one more time, right? And write the question and answer given in your English guidebook, and you have to write down those question answers, right, in your classwork copy, and you also have to learn them, right? So today we are going to go through lesson 4, A Truly Beautiful Mind. So let's start, class. So lesson 4, A Truly Beautiful Mind, for class 9th, right? So let's start, class. So A Truly Beautiful Mind, right, about Albert Einstein, right? So class, this story is all about A Truly Beautiful Mind is a story which reveals all the fact about Albert Einstein, the scientist, right? So this story, after reading this story, we will come through, or we will come to know all about Albert Einstein, right? So that means how he he grew, right? What was, or how his childhood was, right? Then how he went for further studies, right? Then what about all about his experiments and discoveries, right? So this chapter will reveal all the things that Einstein had done during his lifetime, right? So let's start the chapter, class. A truly beautiful mind, right? So before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has, right? Now over here the author or the writer is asking us कि who do you think of when you hear the word genius? मतलब आप किसके बारे में सोचते हैं, या कौन आपके दिमाग में आता है, किस इंसान का नाम या किस इंसान की इमेज आपके दिमाग में आती है जब आप वर्ड कौन सा सुनते हो, जीनियस वर्ड सुनते हो. हु इज़ अ जीनियस? अब जीनियस कौन होता है? वट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? और इन लोगों के पास जो जीनियस कहलाते हैं उनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago, right? Now we are going to study, or we are going to read a story about whom, a German civilian servant, right? So एक जर्मन सिविलियन या सिविल सर्वेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड दिस जर्मन सिविलियन सर्वेंट वाज एल्बर्ट आइंस्टीन, राइट? हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ? टू बिकम पॉपुलर, टू बिकम वेरी पॉपुलर, मतलब बहुत ज़्यादा नाम हो जाना किसी का, तो हम क्या कहते हैं? हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, राइट? अबाउट 100 years ago, 100 साल पहले की बात है, जब ये जर्मन सिविलियन जो था सर्वेंट, वो मतलब अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में क्या हो गया? फेमस हो गया. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking papers, right? So ये समर 1905 की बात है. ये 26 साल का इंसान इसके बारे में कहाँ आ चुका था? अब पेपर्स में भी लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि इसकी न्यूज़ या इसके बारे में अब पेपर्स में भी आना शुरू हो गया था. बिकॉज 100 years back, if you talk about medias and all that, so medias and like TV channels were not present, right? So at that time newspaper was the only source of getting information, right, or getting the news. So during the time when Albert Einstein was 26-year-old, he got so much famous, right, or very famous, that everybody was able to read about his creativity, his experiments, or his discoveries in the newspaper, right? About light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy, right? Now these are the some of his discoveries, right? His took only a few pages in scientific journals, right? So इसके जो ये
जो लिखा, अगर लिखने की बात करें, जहाँ तक लिखने की बात है, तो इट टुक वेरी फ्यू पेजेस, ठीक है, एज फार एज हिज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वर कंसर्न, बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। बट भले ही वो पेजेस में, अगर ब्लैक एंड वाइट की बात करें, ब्लैक एंड वाइट मतलब पेन पेपर की बात करें, तो उसकी जो लिखने वाले, उसके एक्सपेरिमेंट के लिखने के बारे में जो चीज़ें थी, ठीक है, अगर लिखी हुई चीज़ों के बारे में बात करें तो वो बहुत कम थी, बट उन्होंने सारी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बदल के रख दी। जहाँ तक किसकी अंडरस्टैंडिंग की बात है, स्पेस की बात है, मीन्स यूनिवर्स, टाइम की बात है, एंड द इंटायर कॉस्मॉस, कॉस्मॉस मीन्स universe, right? And transformed the names Einstein into the synonyms for genius। और transformed क्या कर दिया कि जो synonyms है, and transformed the name Einstein into the synonyms for genius। इसका मतलब है genius की जब भी बात होती है तो किसका नाम आने लगा, आइंस्टीन का, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे सामने कोई टैलेंटेड होता है तो हम ज़्यादातर उसे आइंस्टीन के नाम से उसको मजाक के तौर पे या कभी कभी सीरियसली होकर उसके सामने ये नाम बोल देते हैं, ठीक है, बातों बातों में निकल आता है। सो दैट मीन्स आइंस्टीन इज़ नाउ कंसिडर्ड, और from the past only, from the past also, or from the past only, this name Einstein has been considered as the synonyms for genius, right? 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reign means to rule, right? और 50 साल बाद भी जब वो नहीं है इस दुनिया में, उसके बाद भी जो भी एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरीज हैं, वो आज भी लोगों के काम आती हैं। और आज भी वो सारी चीज़ें जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं या नॉर्मल लोग भी हैं या नॉर्मल पीपल भी हैं, वो भी दे आर फॉलोइंग द रूल्स दैट हैज़ बीन, और द डिस्कवरीज दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, or the experiment that has been discovered by Albert Einstein, right? So let's proceed further, class. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness, right? So Albert Einstein का जन्म कब हुआ था, 14 मार्च को हुआ था 1879 में, इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। सो ये जर्मनी में हुआ था इनका जन्म, और जर्मन में एक सिटी है या जर्मनी में एक सिटी है, क्या नाम से, अल्म नाम से। विदाउट एनी इंडिकेशन मीन्स नोटिस, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड मीन्स सेट फॉर ग्रेटनेस। मतलब जब वो पैदा हुए थे तो ये किसी को लग नहीं रहा था, या किसी को भी, ना उनके पेरेंट्स को, ना उनके मम्मी पापा को, ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स, किसी को भी नहीं लगा था दैट दिस एल्बर्ट आइंस्टीन person will going to get so much of fame or popularity, right? On the contrary means on the opposite side, right? Different side. So on the contrary, his mother thought Albert was a freak means stupid। आप देख सकते हो बगल में मीनिंग भी लिखी है, a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look और think like others। जो दूसरों की तरह ना दिखते हैं, ना बिहेव करते हैं, और ना वो सोचते हैं, ठीक है, दूसरों की तरह, मतलब नॉर्मल पीपल की तरह। सो इनकी मदर के लिए, अगर हम एल्बर्ट आइंस्टीन की मम्मी की बात करें तो उसके लिए या उनके लिए एल्बर्ट आइंस्टीन कैसा था, ही वॉज अ फ्रीक मीन्स अ काइंड ऑफ अ स्टूपिड पर्सन, राइट? टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उनके लिए उनके जो बेटे का सर है, या एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सर है, वो बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, ठीक है, लगभग 2.5 साल जब उम्र हो गई थी आइंस्टीन की, तब तक वो बात करने के मतलब वो बात नहीं कर सकता था, या बात करने के लायक नहीं था, ठीक है, मतलब ही वॉज अनेबल टू टॉक। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और आखिरकार जब लगभग उन्होंने 2.5 साल तक, मतलब बच्चे जो कि अगर आप न्यूबॉर्न बेबी की बात करो तो लगभग बहुत जल्दी वो बोलने या इशारे में बात करने लगते हैं, बट लगभग 2.5 साल तक आइंस्टीन ने किसी से कोई बात नहीं की थी। आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक। और जब फाइनली उन्होंने कुछ सीखा बोलने के लिए, तो जब भी वो बोलते थे वो हर चीज़ को 2 बार बोलने की उनकी आदत थी। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring, right? So आइंस्टीन की अगर बात करें तो वो उनको नहीं पता था, या वो नहीं जानते थे, जब वो बच्चा था तो वो नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है, मतलब खेला जाता है, साथ में बात किया जाता है, और साथ में
मतलब they like little children, they used to play together, they used to talk together, they used to like do what you can say, the things like misbehave together, all these things, right? But he was unaware of anything, वो उनको कुछ भी नहीं पता था. एंड हिज प्लेमेट्स मतलब जो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे रहते थे आसपास के नेबरहुड के, वो उसको क्या कहते थे, दे यूज टू कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग मीन्स ही वॉज अ काइंड ऑफ अ बोरिंग पर्सन. दैट मीन्स ही वॉज नॉट एट ऑल taking interest in playing with other children who was or who were of the same age like him, right? So the youngsters played by himself. इसलिए वो अपने आप में ही. सो यहाँ पे यंगस्टर किसको बोला गया है, आइंस्टीन को. तो जो ये यंगस्टर था, मतलब जो ये आइंस्टीन थे, वो बचपन में ही अपने साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे. दैट मीन्स ही यूज टू अलोनली स्पेंड हिज टाइम विद हिम. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. मच ऑफ द टाइम, ठीक है. सो वो अलोनली अपने साथ ही अपने आप को टाइम दिया करते थे, मतलब अकेले ही ज़्यादातर समय अकेले ही वो बिताना पसंद किया करते थे. इवन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और उनको सबसे ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज़ पसंद था. मैकेनिकल मीन्स लाइक मशीन टॉयज़, राइट. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, राइट. सो जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा, उसका नाम क्या था, माजा, तो उन्होंने उनको ये कहते हुए सुना गया कि सब कुछ तो ठीक है, मतलब मेरी छोटी बहन हो गई वो भी ठीक है, बट इसकी व्हील्स कहाँ हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करते थे. तो हर चीज़ में उनको, हर लोगों में या हर चीज़ में उनको किस तरीके से देखने की आदत पड़ चुकी थी, मशीन के थ्रू, ठीक है, मशीन के थ्रू, या मशीन लाइक अ मशीन ही यूज टू वॉच एवरीथिंग. हर चीज़ को या हर इंसान को या हर चीज़ों को वो मशीन की तरह ट्रीट करते थे. तो यहाँ पे अपनी बहन को भी, जो न्यू बॉर्न सिस्टर है उनकी माजा, उसको भी वो एज ही इज़ ट्रीटिंग एज अ मशीन, कि सब कुछ तो सही है बट इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील्स मतलब पहिया, ठीक है. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything, right? सो एक हेडमास्टर थे जिस स्कूल में ये आइंस्टीन पढ़ते थे, उसी के हेडमास्टर ने एक बार उनके फादर से ये बोला कि मतलब कोई भी प्रोफेशन अगर आइंस्टीन चूज़ करता है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा किस पे, आइंस्टीन की लाइफ में या लाइफ पे, ठीक है, क्योंकि उनको कभी भी सक्सेस मिलने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी काम करेंगे. आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और उन्होंने फिर आइंस्टीन ने क्या किया, 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया. वायलिन इट्स अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट which is used for playing music, right? Because his mother wanted him to, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी, इसलिए उन्होंने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखा. He later became a gifted amateur violinist, right? Violinist maintaining this skill throughout his life. और बहुत कम उम्र में, ठीक है, वो लगभग बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बन गए, ठीक है, वायलिन बजाने वाले बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन गए, ठीक है. और ये स्किल जो है उन्होंने थ्रू आउट मेनटेन किया अपनी लाइफ, मतलब पूरी उम्र उन्होंने मेंटेन किया इस चीज़ को. मतलब कभी भी अगर कोई उनसे कह देता था बजाने के लिए, तो ही वॉज रेडी टू प्ले द वायलिन. अमेटर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इन्जॉयमेंट, मतलब वो पर्सनल इन्जॉयमेंट, मतलब अमेटर वायलिनिस्ट का मतलब है कि उन्होंने पूरे डेडिकेशन से ये वायलिन बजाना सीखा था, और वो दूसरों के लिए नहीं बजाते थे, मतलब उन्होंने दूसरों के लिए नहीं सीखा या दूसरे कहीं कॉन्सर्ट में जाके नहीं बजाते थे कि उनकी अर्निंग हो सके, बल्कि उन्होंने खुद अपने लिए सब इतना अच्छा सीख लिया था कि वो इसमें लाइक ही वॉज मास्टर्ड इन इट, राइट, और ही हैज़ मास्टर्ड इन इट. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. But Albert Einstein was not a bad pupil. Pupil over here means student, right? So he was not at all a bad student. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, right? So Munich में ही, Munich is a place, वो वहाँ के एक हाई स्कूल में उनका एडमिशन हुआ और हाई स्कूल गए वो. और ये कहाँ था, और ये मुनिच
में मुनिच में पढ़ना उन्होंने इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि जब ये 15 महीने के थे तो इनकी फैमिली वहाँ से मूव्ड कर गई थी, राइट। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग हर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया, राइट। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग उन्होंने हर सब्जेक्ट में उन्होंने गुड मार्क्स स्कोर किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो स्कूल, जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे या पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एंड ऑफन क्लैश्ड मीन्स टू फाइट विद हिज टीचर्स, और लगभग हमेशा उनकी कोई ना कोई टकरार या लड़ाई हो जाती थी, किससे? उनके टीचर से। एट द एज ऑफ 15 Einstein felt so stifled there that he left the school for good, right? At the age of 15, Einstein felt so stifled. Stifled means unable to breathe, मतलब उनको सफोकेशन थी, बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी उस स्कूल में। क्यों? क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पसंद थे उस स्कूल के, और दूसरी बात उनकी हर बार या हर ज़्यादातर उनकी लड़ाइयाँ वहाँ पे होती रहती थी टीचरों से, राइट। सो एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, राइट। और उसी के एक साल पहले जो एल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो कहाँ चले गए थे? मिलान में। एंड लिव देयर सन्स विद रिलेटिव्स, और उन्होंने एल्बर्ट को कहाँ छोड़ दिया? उनके रिलेटिव्स के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लेंदी डिस्कशन, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, राइट। और काफ़ी प्रोलॉन्ग मतलब लेंदी डिस्कशन के बाद आइंस्टीन को, जो आइंस्टीन का सपना था या विश था कि वो कहाँ पढ़ना चाह रहे थे? जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। सो एक मतलब स्विट्ज़रलैंड में एक जगह थी जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग स्कूल था, ठीक है। तो वहाँ पे वो पढ़ना चाह रहे थे, और आखिरकार लेंदी डिस्कशन के बाद उनका ये सपना पूरा हो गया, मतलब रिलेटिव्स ने या पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ कर दिया। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिच, और ये जो मिलान जहाँ पे अब वो थे वो बहुत ज़्यादा लिबरल थी अगर हम मुनीच की बात करें या मुनीच से कंपेयर करें, क्योंकि मुनीच में जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे उनको उस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पसंद थे, टीचरों से भी लड़ाइयाँ होती थी, तो इसलिए उन्होंने मिलान में ही पढ़ना मतलब पढ़ने का मन बना लिया था। और मिलान जो था वो बहुत लिबरल था, मतलब मिलान में जो स्कूल था वो बहुत लिबरल था एज़ कम्पेयर टू मुनीच। सो लिबरल मीन्स willing to understand and respect others' opinion, right? So liberal means in sense that the school member or authority, they were able to understand what exactly are the needs of the students, ठीक है। वो अपने हर स्टूडेंट्स की नीड्स को समझते थे, उनकी थिंकिंग या चीज़ों को समझते थे, एंड दे वर ऑल्सो एट द सेम टाइम हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, राइट। So Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, right? So Einstein जो थे वो highly gifted थे, means he was good at mathematics and he was having interest in physics also. And after finishing school, he decided to study at the university in Zurich, right? So school finish होने के बाद उन्होंने decide किया कि वो university में पढ़ेंगे, और कहाँ पे? जूरिच में। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache, right? So but science wasn't the only thing, but science ही सिर्फ नहीं थी जिसके लिए ये अट्रैक्टिव थे। अपील्ड मतलब फॉन्ड ऑफ, मतलब सिर्फ साइंस ही ऐसी नहीं थी जिसको कि बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन। अपील्ड मीन्स फॉन्ड ऑफ, मतलब सिर्फ साइंस ही ऐसी एक चीज़ नहीं थी पूरी दुनिया में जिसको वो बहुत पसंद किया करते थे। देयर वर मेनी थिंग एल्स, राइट। डैशिंग यंग मैन विद द वैलरस मूस्टैच। डैशिंग मीन्स गुड लुकिंग यंग मैन, एंड वैलरस मीन्स लॉन्ग थिक एंड ड्रॉपिंग मूस्टैच, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो मूस्टैच थी, मूस्टैच मीन्स जो बियर्ड थी उनकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिक थी, लॉन्ग थी और ड्रॉपिंग थी, मतलब दोनों ओर से वो नीचे की ओर आ रही थी। यू कैन सी इन द पिक दैट आई हैव पेस्टेड इन ऑन द फर्स्ट पेज, राइट।
So, but science wasn't the only thing that appealed to the means. It was not only science that he was interested in, right? He was also interested in many more things. Let's proceed further, class. He also felt a special interest in a fellow student, मिलीवा मैरिक, ठीक है। और इस और जो इनका जो इंटरेस्ट था, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सिर्फ फिज़िक्स ही ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें जिसमें इनको इंटरेस्ट था। इनको स्पेशल इंटरेस्ट इनके फेलो स्टूडेंट में भी था, जो कि क्या नाम था उसका, मिलीवा मैरिक, ठीक है। एंड शी वॉज अ गर्ल, सो ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ और ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अ फेलो स्टूडेंट हुज नेम वॉज मेलिवा मैरिक, हु ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर। और उनको ये लगता था कि मिलीवा मैरिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर क्रिएचर है, मीन्स ही वॉज समवेयर वेरी सेम in nature like Einstein was, right? This young Serb means she was from Serbia, ठीक है, Serbian, right? So this young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees, ठीक है। अब वो वो सर्बिया से स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी, कौन, मिलीवा मैरिक, इसलिए आई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी जूरिस में, वो यूरोप में एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे विमेन मतलब लेडीज़ कैन गो एंड स्टडी एंड गेट द डिग्रीज, राइट। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, राइट। सो आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली मीन्स अ फ्रेंड, राइट। सो आइंस्टीन ने उस लड़की में जो मिलीवा मैरिक थी उसमें क्या देखा, उनको आइंस्टीन को अपने दोस्त की तरह वो लगी अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। सो फिलिस्टाइन मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो मीनिंग लिखा है, अ वर्ड यूज टू डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, ठीक है। सो आइंस्टीन ने उनको दोस्त की तरह देखा, पर जो मेलीवा थी उसमें उसमें एक डिसएडवांटेज भी था। वो डिसएडवांटेज ये था कि उसे आर्ट, म्यूज़िक या लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जो भी थी, जैसी भी थी, आइंस्टाइन टुक हर एज हिज फ्रेंड, राइट। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, right? So Einstein क्योंकि पहले से ही मैथमेटिक्स और साइंस और ख़ासकर फिज़िक्स में बहुत अच्छे थे, ठीक है, उनका इंटरेस्ट भी फिज़िक्स में था। और दूसरी बात, उन्होंने 6 साल की उम्र में क्या सीखा था, वायलिन बजाना सीखा था। तो आइंस्टीन की अगर हम बात करें तो ही वॉज वेरी डेडिकेटेड और हैड द डिवोशन टूवर्ड्स everything, right? As far as mathematics and physics was concerned, he was having devotion. As far as music was concerned, he was having devotion. As far as art और लिटरेचर वॉज कंसर्न, ही वॉज हैविंग डिवोशन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिवोशन या डेडिकेशन किस में था, आइंस्टीन में। और पर इसके अगेंस्ट ऑपोजिट में जो उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स में लोग थे या यूनिवर्सिटी में, उनको लेकर के ये बहुत ज़्यादा हमेशा ज़्यादातर क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। क्यों? क्योंकि वे सारे लोग, कुछ जो इनके फैमिली में थे और बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे किसी तरीके का आर्ट वर्क या लिटरेचर वर्क या म्यूज़िक, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे ऑथर ने एक नाम दिया है, क्या, फिलिस्टाइंस, ठीक है। सो फिलिस्टाइंस आर द पीपल हु डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, whereas Albert Einstein had a too much interest in all these things, ठीक है। सो फिलिस्टाइन वो जो उनकी दोस्त थी वो भी थी, मिलीवा मैरिक भी थी, ठीक है। बट फिर भी इसके बावजूद आइंस्टीन थॉट दैट शी कुड बी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिम, राइट, और हिज। The couple fell in love. Now they both fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, right? So letters survive क्योंकि अगर हम आइंस्टीन के टाइम की बात करें तो वहाँ पे फ़ोन या कंप्यूटर जैसी चीज़ें नहीं थी जिससे कि आप लाइक इलेक्ट्रॉनिकली टॉक कर सकें, मतलब बात कर सकें, ठीक है, या मैसेज भेज सकें। तो उस टाइम पे क्या था, लेटर्स वर द ओनली सोर्स ऑफ लाइक गेटिंग और providing information. So that is why
they used to talk with the help of letters. So letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Now they were talking about science. They were talking about all this, all not only about their emotions and all that, but also about science with tenderness means affection. Science को भी लेकर के उस लेटर में बात होती थी. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. ठीक है. और एक बार उनके लेटर में आइंस्टीन ने लिखा भी अपने लेटर में किसको, मेलीवा मैरिक को, कि कितना अच्छा होगा वो दिन, एंड आई विल बी हैविंग एंड आई विल बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑल्सो द डे व्हेन आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, क्योंकि ये रिलेटिविटी थ्योरी पे काम कर रहे थे. इनकी एक बहुत फेमस थ्योरी भी है रिलेटिविटी. ठीक है. तो जब वही वो अपने लेटर में लिखते हैं मेलीवा को कि बहुत अच्छा दिन वो रहेगा और मैं बहुत खुश रहूँगा, प्राउड भी फील करूँगा अपने आप पे कि या हम दोनों पे आई विल बी फीलिंग प्राउड दैट when our work of relativity will come to a victorious conclusion. मतलब जब वो पूरी तरीके से हमारे जो वर्क है रिलेटिविटी का वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा, then I will be having then I will be very happy and proud on both of us, right? So let's proceed further, class. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was university graduate and unemployed, right? अब 1900 ईयर में, ठीक है, 1900 में क्या हुआ जब वो कितने एज के थे, 21 साल के. एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. अब उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी. ही वॉज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड अनएम्प्लॉयड, बट ही वॉज नॉट हैविंग एनी जॉब इन हिज हैंड. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, मतलब एज अ टीचर यू कैन से. गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. ठीक है. उन्होंने प्राइवेट लेसन्स भी दिया, मतलब प्राइवेट ट्यूशन्स भी दिया लोगों को, और लगभग 1902 में उन्होंने एक जॉब पा ली. और कैसी जॉब थी? एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. ये टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब उन्हें मिली एक पेटेंट ऑफिस में इन बर्न मीन्स बर्लिन, राइट. सो पेटेंट क्या होता है? मतलब अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. जिसे आपने सुना होगा कॉपीराइट होता है, तो वैसे पेटेंट राइट भी होता है. तो पेटेंट ऑफिस में वहाँ पे जो इन्वेंटर्स होते हैं उनको इन्वेंशन करने के लिए मतलब राइट्स मिलते हैं. राइट मतलब उनको ये राइट दे दिया जाता है कि हाँ, यू आर नाउ एन ऑथराइज पर्सन टू इन्वेंट द थिंग्स दैट यू वांट टू इन्वेंट. ठीक है. आप जो भी इन्वेंट करना चाहते हैं आप इन्वेंट कर सकते हैं. नाउ वी आर गिविंग यू द राइट टू इन्वेंट, राइट. सो ऐसे ही एक पेटेंट ऑफिस में उसको जो एल्बर्ट आइंस्टीन था उसको किस तरीके की जॉब मिली? एज एन टेक्निकल एक्सपर्ट. While he was supposed to be assessing other people's inventions, right? While he was supposed मतलब अब उनका काम क्या था? दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को चेक करना. ठीक है. तो assessing means to check, right? So वहाँ पे वो उनका काम क्या था, या वो वहाँ पे पेटेंट ऑफिस में क्या कर रहे थे? ही वॉज assessing, मतलब चेक कर रहे थे दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट ना. तो मतलब काम तो उनका चेक करने का था. ठीक है. कि दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को हम चेक करेंगे, तभी उनको तभी उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उन्हें राइट मिल सके कि हाँ, अब वो ये पर्टिकुलर कोई भी चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं. तो ये काम तो वो कर ही रहा था. साथ ही साथ वो अपने आइडिया को भी सीक्रेटली डेवलप कर रहा था. ठीक है. मतलब आइंस्टीन अपने खुद के आइडियाज़ को भी डेवलप करना सीख रहे थे, या सीक्रेटली वहाँ पे डेवलप कर रहे थे. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. और कई बार लोगों ने ये भी कहा कि वो मजाक में अपने जो डेस्क ड्रॉर था जहाँ पे उनकी सारी चीज़ें, इस पेटेंट ऑफिस में जो उनकी डेस्क थी, भाई हर ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करता है उसकी अपनी एक डेस्क होती है, फिर उसमें ड्रॉर भी होता है, राइट. तो जो भी उनकी डेस्क ड्रॉर थी उस पेटेंट ऑफिस में, राइट, जो भी उनकी डेस्क थी, जो भी उनकी टेबल थी, उसका जो ड्रॉर था उसको उन्होंने जोकिंगली मतलब मजाक में क्या कहते थे लोगों से कि ये मेरी थियोरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो है. मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लेबॉर्ट्री ऑफ माई फिजिक्स.
That small drawer was considered or was called as a laboratory of his theoretical physics, right? So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book too. Also read this lesson a little further, right? So what you have to do is you have to write down the word meanings in your classwork copy, ठीक है? वर्ड और मीनिंग्स दोनों अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखना है, ठीक है? और जैसे मैंने अपनी बुक में एक्सप्लेनेशन के टाइम में सारी मीनिंग्स बुक में लिखी है, वैसे आपको ये मीनिंग्स अपने बुक में भी लिखना है। और अभी भी ये लेसन बचा हुआ है हमें पढ़ने के लिए। सो यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी दिस लेसन अ लिटिल फर्दर, सो दैट व्हेन आई विल बी टीचिंग next in the next turn, you will be understanding more clearly, right? So students, in our next class we will continue with the same lesson, right? So till then, take care and stay safe. Thank you.